Hello, my name is Mohammed Arif Khan, and I'm a fifth semester student of pharmacy studying in Jamia Hamdard. Today, I'm going to explain you a topic, and my topic is pathogenesis of rheumatoid arthritis and drug target. So, we should come on the second slide. Sorry, third slide. Firstly, before talking about the topic, we should know the meaning of our topic. We know that my topic is rheumatoid arthritis, so it is related to the joints, it is related to the muscles, it is related to the inflammation. Okay, so chronic inflammatory systematic disease of adults characterized by destructive and proliferative changes in synovial membrane, periarterial structure, skeletal muscle, and perineural stem eventually lead to joint destruction, deformity, and alkalosis. As in the easy language, rheumatoid arthritis एक chronic systematic autoimmune inflammatory disease है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही साइनोवियल जॉइंट्स पर अटैक करता है. इसमें साइनोवियम पर इन्फ्लेमेशन, पेनाविस फॉर्मेशन, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, बोन इरोशन और जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाती है. जैसे कि आप एक इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक हेल्दी जॉइंट है और हेल्दी जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, जॉइंट कैप्सूल है और बोन है, कार्टिलेज है. लेकिन आप जब इसके अंदर रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल हो जाती है. नाउ वी शुड कम ऑन द फोर्थ स्लाइड. Pathogenesis. Okay, pathogenesis. Mostly widely accepted theory is immunogenic response, which take place in synovium. The pathogenesis of rheumatoid arthritis involves a continuous interaction of many cells, molecules, and process. Beta cells have been postulated to play a number of roles, including auto antibody formation, T cells activity, antigen presentation, and cytokine production. Okay, in some circumstances, beta cell act as highly efficient antigen presenting cell. We will explain it after the reading. Activated T cells in terms activate beta cells directly via pro-inflammatory mediators. Okay, activated beta cells differentiate into antibody production plasma cell. Both rheumatoid factor and anti-circulated C-peptide anti-CCP antibodies form immune complexes that can activate, complement, and attack other inflammatory cells to the synovium. Activated beta cells produce a number of inflammatory mediators, including IL-6, TNF alpha, interferon gamma, and lymphotoxin. Pro-inflammatory mediators from T cells and beta cells activate macrophages. Macrophages produce IL-6, TNF alpha, IL-1, and interferon gamma. Dendritic cells produce TNF alpha, IL-1, and IL-6, attracting additional cells to infiltrate in the synovium. Macrophages directly secrete matrix, protease, and other proteolytic enzymes that damage the synovium tissue. Now we explain it in the easy language. As we all know that rheumatoid arthritis का कोई एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ एक ऑटो इम्यून रिएक्शन के थ्रू डेवलप होता है ये. तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये कॉज होता है, जैसे हम पैथोजेनेसिस हम पढ़ रहे थे. तो एक होता है जेनेटिक फैक्टर. अगर आपकी फैमिली में किसी को रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो ये आपको होने के चांसेस हो सकते हैं. दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि स्मोकिंग, वायरल बैक्टीरिया लाइक दिस, स्ट्रेस, हार्मोनल फैक्टर. ये सब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और उसको ट्रिगर करते हैं. फिर उससे ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है.
जब एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, जैसे कि हमने आपको बताया, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर इम्यूनिटी जो है वो इम्यून जो है वो अपने आप को ही डैमेज करता है। बॉडी गलती से अपने ही प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। ओके, फिर आते हैं टी सेल्स एंड बीटा सेल्स का एक्टिवेशन। टी सेल्स एक्टिवेटेड होकर बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। बीटा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, जैसे कि ये इसमें लिखा हुआ है। बीटा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और इन्फ्लामेटरी केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और सेल के अंदर एक्टिवेट होने का उसके बाद उसको सूजन आ जाती है और फिर डैमेज होता है उसके अंदर, ये उसकी। और फिर साइटोकाइनेज रिलीज किया जाता है। ये एक केमिकल होता है, इसके एक्टिवेट होने से ये इस तरह का केमिकल रिलीज होता है, जैसे कि ये हमने भी यहाँ पे पढ़ा। TNF अल्फा, IL-1, IL-6, ये साइटोकाइन्स जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ये इसका मेन रीजन ये होता है। अब आता है साइनोवियल इन्फ्लामेशन, मतलब साइनोवियल के अंदर जो इन्फ्लामेशन, जो सूजन आती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है और उसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स बाहर आ जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है और इसके अर्ली सिम्टम्स, जैसे हमें सिम्टम्स पता लगते हैं, जैसे कि पेन होता है, स्टिफनिंग होती है और स्वेलिंग होती है। पेनस फॉर्मेशन, पेनस फॉर्मेशन से आप ये समझे इन्फ्लेम्ड साइनोवियम जो होता है वो बढ़कर एक गुच्छा, एक ग्रेन्युलेशन मास बड़ा बन जाता है, उसको हम पेनुलस फॉर्मेशन बोलते हैं, और वो जो आपकी बोन होती है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। फिर कार्टिलेज एंड बोन डिस्ट्रक्शन, कार्टिलेज ब्रेक होने शुरू हो जाता है, बोन जो है वो इरोड होने लगती है, और जॉइंट डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, मतलब जॉइंट्स का जो है वो डिफॉर्म होना वो स्टार्ट हो जाता है। सॉरी। फिर आता है सिस्टमेटिक इफेक्ट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स में या बोन्स को ही इफेक्ट नहीं करता, ये साथ साथ आपके लंग्स को, आपके हार्ट्स को, आपकी स्किन को इफेक्ट करता है। और ये फिर आपके पास आती है स्टेजेस। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेजेस है साइनोविटीज। तो साइनोविटीज एक जो है वो स्टेज होती है जब साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आती है, उसको हम साइनोविटीज बोलते हैं। उसके सिम्टम्स जैसे पेन होता है, अभी हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है। इस स्टेज में अभी बॉडी और बोन के अंदर और कार्टिलेज के अंदर डैमेज नहीं होता, ये एक अर्ली स्टेज जैसे हम बोल सकते हैं। फिर आपके पास है पेनस, ठीक है। तो पेनस एक ऐसी स्टेज होती है, इन्फ्लेम्ड साइनोवियम ग्रो होकर एक एबनॉर्मल ग्रेन्युलेशन बना लेती है, जैसे हमने आपको पहले बनाया पेनस फॉर्मेशन, जैसे हमने अभी पहले एक्सप्लेन किया कि एक वो बढ़ चढ़कर एक एबनॉर्मल ग्रेन्युलेशन, एक मास सा बन जाता है जो कि डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है कार्टिलेज को। फिर तीसरी आती है फाइब्रस एनकाइलोसिस। फाइब्रस एनकाइलोसिस इसका होता है जॉइंट में फाइबर टिश्यू भरने लगते हैं, इससे जॉइंट जो है वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है, थोड़ा हार्ड, थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। फिर आता है आपका बोनी एनकाइलोसिस। बोनी एनकाइलोसिस का होता है, ये फाइनल स्टेज होती है जिसके अंदर कार्टिलेज और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और बोन जो है वो इमोबाइल हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता, क्योंकि जब उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू आ जाते हैं तो पहले ही वो, उससे पहले ही स्टेज में वो मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। और फिर फोर्थ स्टेज, जिसको हम फाइनल स्टेज भी बोलते हैं, यहाँ आते आते वो जो है मूवमेंट नहीं कर पाती, इमोबाइल हो जाती है कम्प्लीटली। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है? हाँ, अभी आता है ड्रग टारगेट। सो ड्रग टारगेट, सबसे पहले हमारे पास आता है एनसाइड, जिसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहा जाता है। ये जो ड्रग्स होती है, एनसाइड रिड्यूस द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बट डू नॉट एलिमिनेट द अंडरलाइंग कॉज। जॉइंट डैमेज कंटिन्यूज ड्यूरिंग administration of NSAID. It means that
ये पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस को कम करते हैं, लेकिन डिजीज को कंप्लीटली क्योर नहीं करते। जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि एस्पिरिन, एंडोमेथिसिन और टॉलमेटिन, ये कॉक्स वन कैटेगरीज में आती हैं। और जैसे नीमोसलाइड, मेलॉक्सिकैप, ये जो है कॉक्स टू कैटेगरीज में आते हैं। और इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफिनैक, केटोप्रोफेन, ये सब नॉन सिलेक्टिव कैटेगरीज में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि नोजिया, जैसे वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक डैमेज, अल्सरेशन एंड परफोरेशन, स्किन रिएक्शन, एनाल्जेसिक एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी, लीवर डिसऑर्डर। ओके, फिर हमारे पास आते हैं सिस्टमैटिक glucocorticoids. Okay, one of the most effective treatments in providing systematic relief in rheumatoid arthritis. ये एक जैसे कहा जाता है एक मेन ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है। इसका मैकेनिज्म होता है इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पोस्टाग्लैंडिन्स। ये पोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को रोकते हैं। इट ऑल्सो इनहिबिट TNF अल्फा, IL-1 एंड अदर प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, जो ये इन चीज़ों को भी लो करने का काम करते हैं। इसको लो डोज में दिया जाता है। इफेक्टिव, इट प्रोवाइड्स ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ, दे डू नॉट अरेस्ट द रेमेटॉइड प्रोसेस, नॉट प्रिवेंट बोन इरोशन। ये जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ कॉज करते हैं, ना कि पूरी तरीके से क्योर नहीं करते, लेकिन हाई कॉज जो है रोकते हैं। अब आता है हमारे पास डिमार्ट्स। डिमार्ट्स मतलब कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रेमेटिक ड्रग्स। ये एक्चुअली डिजीज को प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं, जैसे कि आपने देखा। अब हमारे पास है एक बायोलॉजिकल एजेंट भी था, मैं बता देता हूं आपसे। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक इम्यून पाथवे को ब्लॉक करते हैं, इससे पूरा जो प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। जैसे कि TNF अल्फा इनहिबिटर, ये डायरेक्ट से TNF अल्फा को इनहिबिट कर देते हैं। और होता है वो IL-6 इनहिबिटर, ये डायरेक्टली IL-6 को इनहिबिट ब्लॉक कर देते हैं। एक होता है IL-1 इनहिबिटर, ये डायरेक्टली IL-1 को इनहिबिट कर देते हैं। और फिर एक T सेल्स ब्लॉकर होते हैं जो कि डायरेक्टली T सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं। और फिर बीटा सेल्स ब्लॉकर होते हैं जो बीटा सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं और जैक स्टैट पाथवे ब्लॉक करते हैं। तो इसी तरीके से अब हमारे पास हम आते हैं, ये हो गया रिमार्क्स। ओके, देखिए जैसे द एग्जैक्ट मिनिमम नॉन स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देयरफॉर NSAID मस्ट बी continued during their administration. Okay, अब ये है DMARDs are gold, penicillamine, chloroquine and hydroxychloroquine, sulfasalazine, immunosuppressant। और ये जो है कुछ दवाई, कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स। methotrexate, azathioprine, chloroprine. That's all. Thank you for your precious time. Thank you.